नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे डीओ के बारे में, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में। टुडे विल स्टडी अबाउट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So what is DO? Dissolved oxygen is referred to as DO. It is the amount of oxygen present in a water sample in dissolved form. किसी भी पानी के सैंपल में, चाहे वो नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, एक ग्लास का पानी हो, मटके का पानी हो, उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। और वही घुला हुआ ऑक्सीजन जो पानी में होता है उसको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब घुला हुआ ऑक्सीजन। Water bodies receive oxygen from the atmosphere and photosynthetic plants. तो वाटर बॉडीज मतलब सरफेस वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, पॉन्ड या इवन सीज, इनमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से, घुलता है पानी में ऑक्सीजन, तो उससे ऑक्सीजन आता है। इसके अलावा जो झील, तालाब और नदियां होती हैं उसमें पौधे भी होते हैं, उसमें फाइटोप्लैंक्टन भी होते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन तो नहीं, माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, उसमें एल्गी होता है, तो वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसका बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। तो जो पानी में एल्गी और प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे पानी में ऑक्सीजन होता है, और एटमॉस्फेयर से पानी में ऑक्सीजन घुलता है। ये दोनों प्रक्रियाओं से पानी में ऑक्सीजन घुलता है और पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ता है। अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के संबंध बाकी पैरामीटर से किस तरह से है वो देखें। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 by temperature. Why? Because higher the temperature of a sample of water or a water body, less the amount of oxygen that it can dissolve and hold. किसी भी वाटर बॉडी या वाटर सैंपल में जब तापमान बढ़ता है तो वो ऑक्सीजन जो है वो उससे बाहर निकल जाता है, वो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाता, तो डीओ कम हो जाता है। इसलिए डीओ और टेम्परेचर का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डीओ हमेशा कम होगा। दूसरा होता है डेप्थ। सरफेस वाटर बॉडीज में जैसे नदियां और तालाब या इवन समंदर, तो जितना ऊपर होगा वो एटमॉस्फेयर के उतने कांटेक्ट में होगा, उतना ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उस पानी में घुलता है। लेकिन जितना नीचे जाते हैं हम, पानी की सतह से नीचे जाते हैं, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट कट हो जाता है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है। सो डीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ. So in any water body, when we are at the surface, atmospheric air oxygen is continuously mixing with the water and there is high DO. As we go down the surface, as we go below the surface, the contact with the atmosphere is less and less, and as a result the dissolved oxygen is less and less. So this is one reason why with increasing depth in a water body there is decreasing DO. Okay, there's another reason why DO decreases as we go down in a surface water. Suppose there are rivers, there are lakes, there are ponds. Within the base, at the base of the pond, all the dead and decaying plants and animals are collected at the base of the pond. Those dead and decaying plants and animals are being acted upon by bacteria. That bacteria utilizes the oxygen present in the water to degrade those dead and decaying plants and animals. As a result, the dissolved oxygen is further depleted. So first of all, there is less of contact between the atmosphere and the bottom of the water body. So there is less DO. And then at the bottom of the water body, there are dead and decaying plants which are being constantly degraded by bacteria. And in the process, DO is being depleted. So because of both these reasons, there is less DO at the bottom of the water body. So DO is inversely proportional to the depth of a water body. Healthy level of DO in surface water is 6.5 to 8 milligram per liter. And in some cases there it's also mentioned it's 5 to 8 milligram per liter. So both of the values are correct. It depends on which institution is issuing these recommendations and in which country, because certain countries have more stringent regulations and they will regard a pond or surface water body with DO of 6.5 as good quality.
Others might say even if the DO is 5, it's still good quality water. तो DO जो होता है, DO का हेल्दी लेवल क्या है? अगर 6.5 से 8 मिलीग्राम तक DO का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है सरफेस वाटर में, तो वो हेल्दी है। कहीं कहीं पर 5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर भी लिखा होता है, दोनों ओके है। मिलीग्राम पर लीटर ऑलवेज DO का जो मेजरमेंट होता है मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन में होता है, और दोनों ही वैल्यूज सही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस देश में हैं, क्योंकि अलग अलग देश के जो निर्देश होते हैं इन सब चीजों को लेके वो थोड़े थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं, और कौन सा देश किस मामले में कितना स्ट्रिक्ट है, उनके रेगुलेशंस कितने स्ट्रिक्ट हैं, और वो किस तरह के, वो अगर कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि अगर DO 5 मिलीग्राम पर लीटर है तब भी उसको ओके मान लेंगे, पर कुछ देशों में कहेंगे कि नहीं, DO अगर 6.5 से कम है तो हम उसको ओके नहीं मानते, तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन इतना है कि DO अगर 5 से ऊपर है तो हर हाल में उसमें फिश की जो पॉपुलेशन है, अच्छी फिश की, अच्छी मछलियों की अच्छी आबादी होती है, तो पानी की क्वालिटी अच्छी होती है। कभी कभी DO का लेवल 20 मिलीग्राम पर लीटर भी हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। एक होता है सवाल आता है कि DO जो है वो दौड़ते हुए पानी में, जो झरनों में या नदियों में ज्यादा होता है, और रुके हुए ठहरे हुए पानी में मतलब तालाब में या कुएं में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? जब पानी तैरता रहता है, उछलता रहता है, चलता रहता है, तो उसका कांस्टेंट एयर से कांटेक्ट है और वो मिक्स होता रहता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पानी में, ऐसे ऐसे चलता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पानी में मिक्स होता जाता है, तो DO बढ़ जाता है। पर जब स्टिल वाटर है, तालाब का पानी है, तो उसमें उतनी तरंगे नहीं उठती, तो तरंगों की कमियों की वजह से उतनी हलचल नहीं होती है, तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो उस पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। जितना पानी में हलचल होगा उतना ही DO मिक्स होगा। ठहरे हुए पानी में हलचल नहीं होती ज्यादा, इसलिए उसका DO कम होता है। चलते हुए पानी से झरने का पानी, सबसे ज्यादा हलचल झरने में होती है, सबसे ज्यादा DO मिक्स हो जाता है, झरने का पानी का DO हमेशा हाई होता है। कहीं कहीं पर तालाब का पानी जहां रुका होता है और DO कम होता है या DO कम होने की संभावना होता है, वहां आर्टिफिशियल एरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एरेटर्स क्या होते हैं? ये मशीन होते हैं जो हवा को पानी में घुलाने की कोशिश करते हैं। सिंपली एक पहिया या एक चक्का या कुछ उस टाइप की मशीन होती है, वो समझिए कि तालाब के किनारे पे कहीं लगा दी गई और वो घूम रहा है, और उससे ना वो जो पानी में हलचल हो रही है और पानी में DO मिक्स हो रहा है, तो यही एरेटर्स का काम होता है। ये तालाब में पानी का DO की क्वांटिटी बढ़ाने के भी काम में आता है, और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो सूएज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, वहां भी एरेटर्स लगे होते हैं, क्योंकि वहां भी वो सूएज में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी इस्तेमाल होते हैं। So a healthy level of DO in surface water is usually 6.5 to 8. Sometimes some guidelines would also say 5 to 8 milligram per liter. But if the DO is up till 5 milligram per liter, it's still good, and it is still good for most of the fish population to survive. But when the DO hits below 5, the fish population gets stressed. Values of DO can be as high as 20 milligram per liter or 20 parts per million. There's a question that DO in running water is always more than DO in still water at a given temperature. Why? Because DO in running water is constantly running, showing movement, and because of the movement and waves in the running water, the atmospheric oxygen is constantly getting mixed with the water. Whereas in still water, there are not too many ripples, there's not that kind of movement, and there is not that kind of mixing of air into the water, and hence the DO is low. Sometimes DO is increased artificially by using aerators. Aerators are machines which are somewhat like a wheel or a series of wheels which just create movement in the water and help air to get mixed in the water and help increase the DO level of water. That's what aerators do. Oxygen saturation. Oxygen saturation is a relative measure of the concentration of oxygen that is dissolved or carried in any given medium or water sample compared to the maximum amount of oxygen that the water sample can hold at a specific temperature. So it's a relative term. The concentration of DO present in the water sample versus the maximum concentration of DO that the water sample can hold at that temperature. That's called oxygen saturation. And the formula is present DO divided by maximum amount of DO at the temperature multiplied by 100. So it's expressed in percentage. And optimum DO in drinking water or good quality surface water could be 80 to 120% of like that's the oxygen saturation level, which should be like 80 to 120%. तो ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है?
किसी भी वाटर सैंपल में जो डीओ यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उस वाटर सैंपल में उस तापमान पर हो सकता है गुणा 100। तो परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाता है। जो डीओ अभी है डिवाइड उसको भाग कर देंगे उससे जो मैक्सिमम डीओ हो सकता है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से, यही हो जाएगा ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो इट्स अ रिलेटिव टर्म है कि अभी कितना डीओ है वर्सेस मैक्सिमम कितना डीओ इसमें हो सकता था, तो कितना परसेंट है। जैसे कि हम ह्यूमिडिटी को कैसे नापते हैं, एयर की ह्यूमिडिटी को, वैसे वैसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापते हैं पानी। Why is DO important? DO इतना important क्यों है? All aquatic animals need DO to breathe. जो भी मछलियां और कछुए पानी में रहते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर ही निर्भर हैं सांस लेने के लिए। DO is an indicator of water quality and the ability of a water body to support life. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो वाटर क्वालिटी का बहुत बड़ा इंडिकेटर है और उसकी एबिलिटी वाटर किसी भी वाटर बॉडी की एबिलिटी की वो मछलियों को और कछुओं को पाल सकता है कि नहीं उसके डीओ पर ही निर्भर करती है, इसलिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। Lack of DO in a water body is called hypoxia. Hypo means low and oxia refers to oxygen. जब DO की कमी होती है पानी में तो उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। No oxygen condition is called anoxia. An means no and oxia refers to oxygen. जब DO होता ही नहीं है पानी में तो उसको अनॉक्सिया कहते हैं। Minimum DO for fish and wildlife to survive. So Central Pollution Control Board of India issued guidelines, and for the CPCB, that is Central Pollution Control Board of India's guideline, any water body with a DO of 4 parts per million or above is designated as available for as normal for fish and wildlife to breed in it. So Central Pollution Control Board जो है वो वाटर क्वालिटी के और एयर क्वालिटी के मानक तय करता है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया का उसके आधार पर उसके जो मानक उन्होंने दिए उसके आधार पर अगर किसी वाटर बॉडी का डीओ लेवल 4 पार्ट पर मिलियन या 4 मिलीग्राम पर लीटर है या उससे ऊपर है तो वो फिश और वाइल्ड लाइफ के उपयोग में लाने लायक पानी समझा जाता है। मतलब उसमें मछलियां और कछुओं के रहने के लिए वो पानी उपलब्ध हो सकता है, पानी ठीक है। ऑप्टिमम डीओ जो है वो जब हम यूएस ईपीए की गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं, सो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इज अनदर एजेंसी व्हिच वर्क्स फॉर यूएस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू यूएस ईपीए द ऑप्टिमम डीओ फॉर फिश एंड aquatic fauna to survive and thrive is at least 6.5 parts per million or 6.5 milligram per liter. तो जब यूएस ईपीए की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, तो उनके गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी भी वाटर बॉडी का डीओ 6.5 या उससे ऊपर है तो वह फिश और वाइल्ड लाइफ के उपयोग के लिए ठीक है। हालांकि 6.5 पार्ट्स पर मिलियन अगर डीओ है तो उस लेवल पर भी कुछ सेंसिटिव जो मछलियां होती हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, उनके लिए ऑप्टिमम डीओ शायद 8 या 9 हो, लेकिन इन जनरल यूएसईपीए की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑप्टिमम डीओ 6.5 डेजिग्नेट किया गया है क्योंकि इस कम से कम इतना डीओ होने पर ज्यादातर मछलियां और कछुए उसमें रह लेते हैं। डीओ अगर 2 पार्ट्स पर मिलियन या उससे कम हो जाए तो उसको हाइपोक्सिक कहते हैं, मतलब कि डीओ की इसमें सख्त कमी है और इससे मछलियां और कछुए बिल्कुल नहीं रह सकते। डीओ when it's at 2 parts per million or less is considered hypoxic, and fish and turtles cannot live in that water body. If DO is equal to 6 parts per million or more, then according to CPCB, that is Central Pollution Control Board of India, that kind of water body with a DO of 6 milligram per liter or more is can be used as a drinking water source with just disinfection of the water, and it will not need a detailed conventional treatment. Whereas if the DO of a water body is 4 milligram per liter or more, that is between 4 to 6 milligram per liter, then the drinking water source will need proper treatment before the water from the drinking water source will need proper treatment and disinfection before supplying it to the consumers. तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक अगर किसी वाटर बॉडी का झील, तालाब, नदी
का डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा है, तो उस केस में उस वाटर को सिर्फ डिसइंफेक्ट करके सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वही डीओ अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर और 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में अगर है, तो उस ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को से जो पानी हम सप्लाई के लिए लेंगे उसको पहले हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे और उसको सुधार करेंगे, डीओ उसका बढ़ाएंगे और फिर डिसइंफेक्ट करेंगे और फिर ही हम उसको सप्लाई करेंगे। सो डीओ का बहुत महत्व है ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, सरफेस वाटर और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी डीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये जो लिंक्स हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डीओ के बारे में और कुछ और ये लिंक्स है ईपीए की वेबसाइट के, जिसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और वाटर की क्वालिटी की बात की गई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। अप्रोचेस टू मेजरिंग डीओ कंटेंट। तो इतनी सारी बातें हो गई डीओ के बारे में। डीओ को मापते कैसे, कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन? तो इसके कई मेथड है। एक कलरीमेट्रिक मेथड है। कलरीमेट्रिक, कलर मतलब रंग और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो रंग से हम नाप लेते हैं डीओ को। उसके दो तरीके हैं, इंडिगो कार्माइन और रोडाजाइन डी। दूसरा होता है सेंसर मेथड्स। इसमें हम डीओ को सेंस करते हैं। सेंस करने के भी तरीके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, जो कि या तो पोलैरोग्राफिक मेथड होता है या फिर गैल्वेनिक मेथड होता है। और दूसरा ऑप्टिकल या लुमिनेसेंट मेथड है, मतलब लाइट से रिलेटेड है। तीसरा टाइट्रोमेट्रिक मेथड, विंकलर्स मेथड, जो कि लाजॉस विंकलर ने 1888 में बताया था। दूसरा होता है ऑल्स्टरबर्ग मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड या अजाइड मेथड। ये सबसे कॉमन मेथड है, अजाइड मेथड, जो डीओ एस्टिमेशन का होता है, आज तक हम लैब में यूज करते हैं। फिर तीसरा है राइडियल स्टुअर्ट मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड या परमैंगनेट मेथड। तो ये टाइट्रोमेट्रिक मेथड है डीओ को एस्टिमेट करने के। मेजरमेंट ऑफ डीओ इन द लेबोरेटरी, लैब में डीओ कैसे मेजर करते हैं? तो एक चीज है कि इंडस्ट्रीज के पास अक्सर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और उनके पास समय की कमी होती है, तो वो डीओ का सेंसरी मेथड से, प्रोब से तुरंत नाप लेते हैं। पर लैब में जब एमएससी स्टूडेंट्स को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या किसी भी केमिकल पैरामीटर को नापना सिखाया जाता है, मापना सिखाया जाता है, तो उनको एक डिटेल्ड प्रोसेस सिखाया जाता है, ताकि वो सिर्फ एक पैरामीटर नहीं माप रहे हैं, वो पूरा जो उसके अंदर जो लैब का जो पूरा प्रोसीजर है, केमिकल्स कैसे बनाते हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है, केमिकल को बनाने का सही तरीका क्या है, वो पूरा उस एक एक्सपेरिमेंट में सीख जाते हैं। तो इसलिए डीओ जो है लेबोरेटरी में, वो विंकलर्स मेथड या मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड से मेजर किया जाता है। मैं अपनी पिछली स्लाइड को जरा इंग्लिश में बता दूं। So DO is measured in multiple ways. One of them is colorimetric method, that is measurement via colors, which is indigo carmine and rhodazine D. Second is the sensor methods. This could be of multiple types. So electrochemical sensor method, which is polarographic method or galvanic method. And second is the optical or luminescence method, which is optical, clearly speaks for itself that it is the measurement through light. Titrometric method is measurement through titration. It's the chemical method used in laboratories all the time and taught to university and high school students. So Winkler's method, which was proposed by Lajos Winkler in 1888, and Osterberg modified Winkler's method, also called Azide method. And third is the Riedel-Stewart modified Winkler's method, which is the permanganate method. So we'll talk in detail more about the titrometric method, because when you go to a master's class, master's lab or a bachelor's lab, that's what you will be taught. So Winkler's method में क्या होता है? Here DO is fixed on site. I'm sorry. Here DO is fixed on site after sampling using manganese salt under alkaline conditions in the presence of iodide ions. And DO needs to be fixed on site as oxygen itself is volatile. तो यहाँ क्या होता है, हम सैम्पलिंग करते हैं और जैसे ही हमने सैंपल लिया, तुरंत वहीं पर हम मैंगनीज का सॉल्ट डाल के और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के और आयोडीन वगैरह डाल के हम उसको वहीं पर फिक्स कर देते हैं। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में है उस सैंपल में, वो केमिकली फिक्स हो गया, अब वो बदलेगा नहीं और वो 8 घंटे तक सैंपल को हम वैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एक डीओ बॉटल है। डीओ बॉटल कभी कभी रिएजेंट बॉटल की तरह भी दिखता है। एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स को डीओ और रिएजेंट बॉटल का फर्क बीओडी और रिएजेंट बॉटल का फर्क बहुत अच्छी तरह से पता है। सॉरी मैंने अगर गलत कहा, तो ये एक बीओडी बॉटल है जो डीओ के एस्टिमेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो
इसमें बीओडी बॉटल और रिएजेंट बॉटल में क्या फर्क है? जो रिएजेंट बॉटल होता है उसका ढक्कन एकदम लूज होता है और बीओडी बॉटल का जो ढक्कन होता है वो एकदम टाइट होता है, वो स्क्रू की तरह कस जाता है। और उसका कारण है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक वोलाटाइल एलिमेंट है और पानी में घुला हुआ है, और हो सकता है कि तापमान के बदलाव से वो पानी में जो बीओडी बॉटल में जो ऑक्सीजन जो ये भरा होगा यहाँ पे पानी में, वो निकलने लगे। तो इसका ढक्कन इतना टाइट होता है कि जो ऑक्सीजन और पानी जो इसमें है वो कहीं बाहर नहीं निकले। तो पहले हम पानी को सैंपल करते हैं, उसको केमिकली फिक्स करते हैं और ढक्कन एकदम क्लोजली टाइट होता है, और फिर हम उसको लैब ले आते हैं और फिर लैब में एनालिसिस करते हैं। क्योंकि कहीं भी नदी या तालाब का पानी अगर हम सैंपल करने जाएंगे तो ये संभव नहीं है कि अपने लेबोरेटरी के सारे इक्विपमेंट्स वहां ले जाके हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। इसलिए कुछ केमिकल्स हम बना के ले जाते हैं और डीओ को और हम सैंपलिंग करते हैं, और सैंपलिंग करने के बाद उसको वही उन केमिकल्स से यूज करके डीओ को ऑन साइट फिक्स कर दिया है। तो और फिर शाम को जब हम लौटते हैं लैब अपनी 8 घंटे के अंदर अंदर, तो लैब में हम उसको टाइट्रेट कर लेते हैं और डीओ की रीडिंग ले लेते हैं। सो डीओ is dissolved oxygen is volatile, and that's why sampling of dissolved oxygen and fixing of dissolved oxygen on site is really important. So we use these specialized BOD bottles to sample DO. Once sampled, we fix dissolved oxygen using manganese salt under alkaline conditions, that is using potassium hydroxide or sodium hydroxide, and then we fix it with iodide ions, and this kind of fixed sample can now be preserved for 8 hours. So we can wait till we get back to our lab in the evening and we can estimate our DO there using titration. So on-site measurement of DO. कभी जो आजकल जो मैंने रिंकलर्स मेथड या अजाइड मेथड है, ये बहुत पहले का है, पर आजकल बहुत सारे प्रोब्स और एनालाइजर निकल आ गए हैं मार्केट में, जिससे आप DO को ऑन साइट तुरंत मेजर कर सकते हो और आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सो हाउ टू मेजर DO ऑन साइट? इट इज मेजर्ड डायरेक्टली इन वाटर यूजिंग अ कैलिब्रेटेड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एनालाइजर। तो ये एक तरह का कैलिब्रेटेड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एनालाइजर है ये भी, और ये सिंपली ये प्रोब है, ये जाता है पानी में और यहाँ पर रीडिंग डायरेक्टिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। एरेशन एक फैक्टर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का। एरेशन मतलब कितना जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो पानी में कितना घुल पा रहा है, और एरेशन जो है वो पानी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। सरफेस एरिया, कितना पानी का सरफेस एरिया है। अगर कोई पानी एक छोटे से ग्लास में रखा है तो जाहिर है उसमें एरेशन की संभावना तो कम ही है, तो उसका डीओ कम हो सकता है। और वही अगर कोई पानी एक बड़े से पतीले में रखा है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा डीओ घुल सकता है, सरफेस एरिया। उसी तरह से वैसे झील, नदी और तालाब का भी होता है। जितनी चौड़ा और जितना चौड़ा और जितना दूर में फैली हुई नदी, झील या तालाब होंगे, उतना ही सरफेस एरिया होगा, उतना ही डीओ के मिक्स होने की संभावना होगी। तीसरा होता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। ये तो मैंने पहले ही बताया कि डीओ और टेम्परेचर का जो रिश्ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हायर द डीओ, दैट मींस द वाटर इज रिलेटिवली लो टेम्परेचर। सो अगर किसी भी पानी का तापमान ज्यादा होता है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी अपने अंदर ऑक्सीजन को ना तो ठीक से डिसॉल्व कर पाता है और ना ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ठीक से होल्ड कर पाता है। सैलिनिटी और डीओ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी पानी में अगर सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा है तो डीओ उसमें कम होता है, क्योंकि डीओ कम घुलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जैसे कि प्लेन्स पर जहाँ की हाइट ऑफ द सी लेवल 0 होता है, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो दबाव से पानी में घुलेगा ना ऑक्सीजन। किसी भी चीज को प्रेशर से आप पानी में घुलाएं तो ज्यादा घुलेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज्यादा होता है सी लेवल के आसपास, तभी वो डीओ ज्यादा होता है। और पहाड़ों पर अगर टेम्परेचर एक ही है, पहाड़ पर अगर 15 डिग्री टेम्परेचर है और प्लेन्स में भी अगर 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो प्लेन्स में डीओ ज्यादा होगा, पहाड़ पे कम, क्योंकि पहाड़ पे हाइट होती है और हाइट पे हम जानते हैं कि पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज सच एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड बायोडिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी ऑर्गेनिक एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है और बायोडिग्रेडेशन होता है, ये डीओ को अफेक्ट करता है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो डीओ बढ़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। लेकिन रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ है या एनिमल ग्रोथ है या आर्थ्रोपोड्स का ग्रोथ है, तो बहुत रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो रेस्पिरेशन जो है उसमें हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन डिप्लीट होता है। बायोडिग्रेडेशन, माइक्रोब्स बायोडिग्रेड करते हैं और उसमें वो उस प्रोसेस में वो रिस्पायर करते हैं,
ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो बायोडिग्रेडेशन और रेस्पिरेशन, इन दोनों प्रोसेसेस से डीओ डिप्लीट होता है, फोटोसिंथेसिस से डीओ बढ़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी नदी या तालाब में अगर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे आपको हरे हरे दिख रहे हैं तो शायद उसका डीओ अभी ज्यादा है, लेकिन बाद में उसका डीओ शर्तिया कम होगा, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे हैं अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो पेड़ पौधे कभी ना कभी मरेंगे भी, और जब वो मरेंगे तो फिर उनको माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा उनका, और फिर माइक्रोब्स उनको डिग्रेड करने की प्रोसेस में, बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो और बीओडी बढ़ेगा और डीओ घटेगा। तो इसलिए किसी भी वाटर बॉडी में प्लांट्स की संख्या बहुत ज्यादा होना ये एक खतरे की घंटी है कि इसका डीओ बाद में जाके कम हो जाने वाला है। So factors affecting DO. There are multiple factors that affect DO. One is aeration. Aeration is like mixing of atmospheric oxygen into the water. So more aeration, more DO. Surface area. The bigger the surface area, more the probability of aeration. And that's why more DO. Temperature. We already discussed. Temperature and DO are inversely proportional. So higher the temperature, lower the DO. 4. Salinity. Salinity is also inversely proportional to DO. More the amount of salts in the water, less the DO. Atmospheric pressure. Clearly, higher the atmospheric pressure, more the DO, because when the atmospheric pressure is more, it pushes the air into the water with more force and gets it to mix in the water. So more the atmospheric pressure, more the DO. At high altitudes where the atmospheric pressure is low, the DO is low at the same temperature. So if there is 15 degrees Celsius, the temperature is 15 degrees Celsius on a hill, and the temperature is say 15 degrees Celsius on a plain. So the DO at the plains would be higher because atmospheric pressure at the plains is higher. Second is last is level of organic activity such as photosynthesis, respiration, and biodegradation. Clearly, photosynthesis gives oxygen as a byproduct, and as a result, it increases the oxygen level of any water body. And respiration consumes oxygen, and so does biodegradation. So more respiration and more biodegradation means less DO. But it must be noted that if you see a water body with lots of green plants, its DO might be high as of now. But down the line, after a few weeks, months, say, the plants are certainly going to die. And when these plants die, they are going to be acted upon by microbes, and which will cause biodegradation and use DO in the process. So a lot of high population of plants in any water body is not a good sign for its future level of DO. Impact of low DO. DO कम होने से क्या होता है? Death of fish population. Large fish die first. पहले बड़ी मछलियां मर जाती हैं. Replacement of DO sensitive species with fly larvae and birds. DO sensitive species जैसे मछली वगैरह होती हैं वो इसमें नहीं रह सकती कम DO में, और फिर उसमें मच्छर और कीड़े मकोड़े पलने लगते हैं क्योंकि ये टॉलरेंट स्पीशीज होती हैं और कम DO में भी पल जाते हैं. फाउल स्मेल ड्यू टू एनारोबिक एक्टिविटी. जब DO कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो एनारोबिक डिके होने लगता है, तो फिर उसमें से सल्फर शायद निकलने लगे, मीथेन निकलने लगे, तो उससे फाउल स्मेलिंग, सल्फर का जो स्मेल हम सब जानते हैं कि बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, तो उसमें फाउल स्मेल होने लगता है. तो DO की वजह से जो सड़न होने लगती है, DO कम होने की वजह से सड़न होने लगती है. फिर हाई हेल्जेनहॉफ बायोटिक इंडेक्स. I don't know if it's pronounced Hilsenhoff or Heisenhoff, but high Heisenhoff biotic index means high number of arthropods. Arthropods invertebrate animals हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, मकड़ी, ये सब होते हैं, और ये सब कम DO में भी सर्वाइव कर जाते हैं, और ये टॉलरेंट स्पीशीज होती हैं. तो जब किसी भी चीज में DO कम होता है तो ये जो आर्थ्रोपॉड का पॉपुलेशन है वो ज्यादा दिखाई देता है, तो उसका मतलब कि हाइजेनहॉफ बायोटिक इंडेक्स ज्यादा है, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि इस पानी का DO कम है. जैसे कि आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई केमिकल नहीं है या कोई प्रोब नहीं है जिससे आप DO मेजर कर सकें, पर आप पानी का एक सैंपल लीजिए और उसमें आप उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज कर लीजिए कि उसमें कितने मक्खी मच्छर की कीड़े मकोड़े और इस टाइप की और आर्थ्रोपोड्स हैं. अगर उनकी संख्या ज्यादा है इसका मतलब उनका हाइजेनहॉफ बायोटिक इंडेक्स ज्यादा है, और अगर ये है तो उसका मतलब DO कम है, क्योंकि क्लियरली ये सब DO टॉलरेंट स्पीशीज हैं जो कि तभी होती हैं ज्यादा जब DO कम हो जाता है. विजिबल साइंस ऑफ DO क्या है? हाई प्लांट अबंडेंस. बहुत ज्यादा प्लांट हो अगर पानी में, क्योंकि आपको पता है कि इस पानी में बहुत ज्यादा प्लांट है, और ये प्लांट अभी दिख रहा है खड़ा, लेकिन शायद पानी के तलहटी में ये सड़े हुए प्लांट्स इकट्ठे भी हुए होंगे,
तो क्लियरली इसका डीओ कम है और कम होने वाला है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यस, ऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर पानी में आपको काला काला या कुछ भूरा या पीला या आपको कुछ भी ऑर्गेनिक वेस्ट फीकल मैटर दिख रहा है पानी में, तो पता है कि वो उसका बायोडिग्रेडेशन भी साथ साथ हो रहा है माइक्रोब्स के द्वारा और डीओ डिप्लीट हो रहा है। फाउल स्मेल, फाउल स्मेल का मतलब है कि एनारोबिक कंडीशन है, जैसे मैंने पहले बताया, और एनारोबिक कंडीशन कभी होगा जब डीओ नहीं होगा। टर्बिड वाटर, वाटर अगर टर्बिड है, मटमैला है, तो उसमें उसका मतलब ये है कि उसमें इम्प्योरिटीज बहुत है और डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें कम है। येलोइश ग्रीन ब्राउन ग्रे और ब्लैक वाटर, इसका मतलब होता है कि आपके पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है और इसकी वजह से भी डीओ की कमी होती है। इसकी वजह से दो वजह से डीओ की कमी होती है। पहला तो अगर पानी में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या ऑर्गेनिक मैटर खुला है तो उसका बीओडी बढ़ जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाती है और मछलियां मरने लगती हैं, तो उसका नेचुरली उसका डीओ कम हो जाता है। तो एक तो उसका बीओडी बढ़ जाता है और माइक्रोब्स उस पर एक्ट करने लगते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर पर, तो डीओ डिप्लीट होने लगता है। और दूसरा, क्योंकि उस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से पानी ऑलरेडी गंदा हो रहा है और डीओ डिजोल्व भी कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ेगा तो उस पानी में ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन भी कम होगा, तो मछलियां भी मर रही हैं, तो मछलियों के मरने से फिर उनका बायोडिग्रेडेशन होता है तो डीओ कम होता है, और नेचुरली जो इफ्लुएंट उसमें डाला गया है उसका भी बायोडिग्रेडेशन हो रहा है तो डीओ कम हो रहा है। So there are multiple signs or visible signs of low DO. One is high plant abundance, because we clearly know that right now the plants are looking all green on the top, but they might be dead plants at the bottom which are being acted upon by microbes, and thus DO is being depleted. So high plant abundance is a visible sign of low DO. Presence of organic waste. Clearly there are organic waste present in the water. That means the BOD is high, organic waste is being degraded upon, and that might deplete the DO of the water body. Foul smell. Foul smell happens in anaerobic conditions. So clearly DO is low. There are anaerobic condition, anoxic condition, and foul smell is there. Turbid water. Turbid water means lots of impurities in the water. Again, low DO. Yellowish green, brown, gray, or black water means there is high probability that the water has organic material or industrial discharge in it, and that depletes DO for two main reasons. First, the biodegradable organic material itself is being acted upon by microbes and DO is being depleted in the process. Second, because these impurities are making it difficult for the fish to survive in that water, the fish is dying, and that dying fish is being acted upon the microbes again. So how to improve anoxic or hypoxic conditions? Anoxic conditions means no DO, hypoxic condition means less DO. इसको कैसे, how do we improve this situation? कैसे इसको हम बदल देंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी झील या तालाब या नदी में अगर अनॉक्सिक कंडीशन हो गया है कि जीरो हो गया है डीओ, तो उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक उसको हमेशा किया जा सकता है। नेचर की यही तो खासियत है कि उसको मरम्मत करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो उसमें उसको कैसे करते हैं मरम्मत? रिमूवल ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसी भी जगह पे ये अक्सर देखा गया है कि जब नदी वगैरह होती है और उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो जलकुंभी उसमें उत्पन्न हो जाती है, वाटर हायासिंथ हो जाता है। और वाटर हायासिंथ जो है वो एनीवेज ऑक्सीजन के सप्लाई को एटमॉस्फेयर के और पानी के बीच के जो कांटेक्ट है उसको कट कर देता है, और फिर वो वाटर हायासिंथ जलकुंभी उसमें मरती रहती है और ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन होता रहता है। तो जलकुंभी अक्सर होती है जिस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, पहले उसको हटा देना चाहिए। सबसे पहले जलकुंभी या किसी भी प्लांट वगैरह को आप देखें पानी में या काई जमी हुई है कुछ भी, उसको पहले हटाएं। कुछ लोग उसको खुद पानी में या तालाब में घुस के हाथ से हटाते हैं, कुछ लोग उसको मशीनों से हटाते हैं, पर उस तरह के जो मरे हुए जीव जंतु, जो भी पौधे जानवर जो भी उसमें है, पहले उसको हटाएं, सबसे पहला तरीका। दूसरा, डीसिल्टिंग और रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम वाटर बॉडी। जो भी सेडिमेंट्स वाटर बॉडी में है, किसी भी वाटर बॉडी में सेडिमेंट्स होते हैं और उसमें अक्सर डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो उसको हटा देना चाहिए। साल में एक बार वैसे भी तलहटी की सफाई कर देनी चाहिए। चेकिंग इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सूएज डिस्चार्ज इफ एनी। जो भी न्यूट्रिएंट आता है, कभी कभी एग्रीकल्चरल रन ऑफ के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पानी में आते हैं, क्योंकि फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब फर्टिलाइजर हैं, खाद होते हैं, और यही जब खेतों से पानी आता है तो उनके साथ ये फॉस्फेट और नाइट्रेट भी नदी या तालाब के पानी में आ जाता है, और ये न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट कर देता है। उसमें न्यूट्रिएंट की संख्या, न्यूट्रिएंट की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है और तुरंत उसमें एल्गल ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि अब पानी में न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं।
तो इस तरह से न्यूट्रिएंट अगर कहीं भी खेतों से या किसी इंडस्ट्री से या म्युनिसिपल सुएज से कहीं से भी आ रहा है तो उसको रोकना चाहिए। म्युनिसिपल सुएज से रोकने का तरीका है कि आप एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें तो रुक जाएगा। और खेतों से न्यूट्रिएंट्स को रोकने का तरीका है कि खेतों के इर्द गिर्द कुछ मिट्टी से ही इम्पाउंडमेंट कर दें कि जब बारिश का पानी खेतों से बाहर निकलना चाहे तो निकल नहीं पाए और नदी में मिल नहीं पाए, तो इम्पाउंडमेंट कर दें। कुछ भी आप एक मिट्टी की दीवार कुछ खड़ी कर दें। इम्पाउंडमेंट टू प्रिवेंट एग्रीकल्चरल रन ऑफ। आर्टिफिशियल एरेशन ऑफ वाटर, और ये सब करने के बाद आप अगर डीओ को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका आर्टिफिशियल एरेशन करिए। जो मैंने बताया कि एक पहिए की तरह होता है, एक कोने पर लगा होता है, वो घूमता रहता है, पानी में हलचल क्रिएट करता है और उससे पानी में ऑक्सीजन घुलता रहता है। सो ऑल दीज आर वेज टू इम्प्रूव द अनॉक्सिक और हाइपोक्सिक कंडीशंस। फर्स्ट, remove all the dead and decaying plants or animals from the water body. Second, desilting or removal of sediments from the water body. This should anyways be done at least once a year. Checking inflow of nutrients and sewage discharge, if any. So if any sources are discharging their nutrients or sewage in the water body, you must immediately check it. Second, then is impoundment to prevent agricultural runoff. So it's easier to check the point sources of pollution for a water body. Point sources means like a single pipeline, like you can pinpoint this source, a single pipeline discharging sewage in the water body. So you can stop it and divert this water and treat it in a treatment plant, and then maybe let out the water, which has a low BOD and high DO. So you can do that for sewage treatment plants. But for agricultural runoff, it's difficult to pinpoint its point of influx into the water body, because fields are like this, right? There's no single pipeline from the fields to the water body. They're all over around the banks of the water body. So how to check nutrient influx from agricultural runoff into the water body? By creating an impoundment, like a mud wall around the fields, so that the water from the fields is not able to cross the mud walls and not able to mix into the water body. So creating impoundment around agricultural fields to check the inflow of to check the flow of water body from the fields into the water, to check the flow of water from agricultural fields into the water body. So impoundments to prevent agricultural runoff. Artificial aeration of water. You have done all of this, but you still think that the level of DO in the water body is maybe not enough. So what do? You do artificial aeration. So as I told you earlier, aerators are machines. They are like wheels, and they are installed in one corner of the water body, or maybe more than one corner, and they continuously run on electricity, and they keep mixing or agitating the water where they're installed, and this agitation or mixing helps atmospheric oxygen to get dissolved in the water and immediately increases the DO of the water body. So I think whatever I've told you about dissolved oxygen should be good. I have not told you the complete lab procedure for a dissolved oxygen, the azide method, in detail. I'll share a link in the description box where there is a YouTube video, and you can see that video, see the complete video if you want to know each and every details of the azide method of DO estimation. आशा है मैंने जो dissolved oxygen के बारे में आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे जरूर बताएं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो मेजरमेंट का लैब मेथड है, अजाइड मेथड, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपसे शेयर नहीं की है क्योंकि इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, पर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो ढूंढा है और वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अजाइड मेथड डिटेल में जानना हो तो आप उस लिंक को क्लिक करके और जान सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Please do like, share and subscribe to my channel.